What is the difference between grey, blue and green hydrogen? Tell me something about how buildings can be made earthquake resistant. एक जिले में जिला पंचायत और नगर पालिका दोनों हो सकती हैं. What do you understand by cloud kitchen? Yes. Good afternoon, sir. Good afternoon. Betty. So your preferred medium of interview is English or bilingual? Sir, bilingual. Bilingual. Yes. तो मंजुल बताइए अपने बारे में कुछ. Sir, my name is Manjul. I belong to Gorakhpur, Uttar Pradesh. I have completed my schooling from Kamal Girls Inter College, Gorakhpur, and therefore I graduated in the year 2018 from in civil engineering branch from Madan Mohan Malviya University of Technology, Gorakhpur. After that, sir, I started preparing for civil services. Okay. Why you have left your prime career? Sir, to be a part of administration, sir, this was my childhood dream. I wanted to pursue career in it. And apart from that, sir, I also sought it as an opportunity where I could help a large number of people, sir. And sir, I think the civil services is serving in this profession is a win-win situation, sir, where we can help people at a broader spectrum, and at the same time we're also getting employment. So I decided. Then why you have not read humanities in the graduation? Sir, I took 12th. I took maths in my 12th standard, so I decided to pursue engineering. But later on, when I delved into the optional subjects provided in the civil services, I saw sociology to be an interesting discipline, so I decided to take it as my subject. लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप अगर जो है वो मानविकी विषयों से, ह्यूमैनिटीज से आप ग्रेजुएशन करती तो जो आप सर्व करना चाह रही हैं वो और बेहतर ढंग से सर्व कर पाती? Sir, I think that depends on individual capacity, sir. I don't think that it is a prime consideration, sir. Even if I'm not from the humanities background, I can definitely serve the society. I don't think it has a very great connection with the discipline to which I belong. Okay. What's your hobby? Sir, my hobby is cooking and listening music in free time, sir. Listening music. Do you have any idea about the basics of music? Sir, so primarily it has been cooking as my hobby, sir, and but sir, in basics of music, sir, not as such so much, sir, because primarily I prefer cooking only as my hobby. Okay. So listening music is not a good hobby for you. Yes, sir, primarily cooking, and then What type of food you cook? sir, mostly the North Indian cuisine, sir. North Indian cuisine. Yes, sir. And regarding the South Indian cuisine, have you tried it? No, sir, not the South Indian cuisine, sir. Okay, you have never tried it. So once I tried, but it did not came out perfectly. So I prefer cooking North Indian cuisine, sir, like chole bhature, litti chokha and all. So I enjoy cooking it, sir. Okay. राजमा की रेसिपी बताइए. Sir, rajma is a type of lentil, I would say. Rajma, sir, cooking rajma, sir. So one recipe which we often cook is rajma chawal. In that, sir, we take rajma and the other ingredients include the mustard oil, onion, garlic, tomato. Apart from that, sir, also we add on spices like cumin powder, then dhania powder, and the garam masala powder. So, the process involves the cooking of all those ingredients and at an optimum temperature level. And apart from that, we prepare rice, sir. So that is, I think. What's the role of corrigendum in our body? Pardon, sir? What's the role of corrigendum in our body? Sorry, sir, I cannot. Manjul, Yes. you have done civil engineering, Yes, sir. right? Tell me something about how buildings can be made earthquake resistant. Sir, first of all, we should ensure a certain type of shock absorbance in the structures, like the rubber absorbers we can put. Apart from that, sir, we can provide steel frames. Also, the reinforcing of walls can be done.
So steel frames and steel beams can be used for it because it provides a degree of elasticity. How does the soil quality affect the stability of structures? Sir, I believe that sir, in stability of structures, sir, the soil compaction is very important. I think the greater amount of compaction, the lesser amount will be the drainage of the subsurface material, sir. So, sir, I believe. Okay. Can you tell me about at least 3 to 5 civil engineering marvels in India? So recently, civil engineering. So one is the metro rail project which we have. Apart from that, the Chenab railway bridge, which is the highest bridge as of now in our country. And sir, I cannot recall right. What about Statue of Unity? Yes, sir. Statue of Unity, sir. Sir, it is located in Gujarat, on the banks of Narmada River. Sir, I do not know the details of the height and all. Okay. In recent times, Statue of Equality and Statue of Prosperity have also come up. Yes, sir. Where are they located, and like they are referring to which individuals? Sir, one is in reference to Sri Ramanuj. Sir, that which is that, Statue of Equality or Prosperity? Sorry, sir, I am confused in that. Okay, fine. If we talk about sociology, yes, then what is Max Weber's contribution to sociology? So Max Weber, he gave a concept of social action. He said that sociology is the study of social action. Apart from that, he said that he gave the concept of Verstehen. In Verstehen, Verstehen literally means to understand or to interpret, sir. In that, he gave two methods. One is the empathetic listening and other is the direct observation. In direct observation, sir, we study about the society with scientific methods, whereas in empathetic listening, the sociologist or the social scientist put themselves in the shoes of scholars. Okay. Who is regarded as father of Indian sociology? So, father of Indian, so Auguste Comte, he established a department of sociology, and Indian sociology, sir, I'm confused. Nobody is referred to as father of Indian sociology? No, sir. No, sir, this is not so. Sir, I'm confused between two scholars. Fine. I'm not accurate on. What is social murder? Are you aware of this term? So, sir, I'm aware of it, but sir, I'm unable to interpret it. Okay, let's leave it. What is glass ceiling? Yes. And sir. how is it different from glass cliff? So, glass ceiling is particularly used with the reference of women in occupation, that they are perceived to pursue a particular role up to a certain level and at a certain wages, we can say, on economic parameters, and on the basis of talent also, sir, it is defined. So what happens? They are not able to reach the top positions in organizations, sir. right? Yes, sir. Yes, there is some kind of invisible thing which is stopping them, right? Yes, sir. But what is glass cliff? Sorry, sir, glass cliff. And is the glass ceiling phenomena only restricted to females, or like everybody suffers from it, or like all marginalized sections suffer from it? Sir, I believe that it is not only restricted to females, the other vulnerable communities are also. Okay, my final question to you, what do you understand by cloud kitchen? So cloud kitchen is a recent concept, sir, where the people who are so not so economically empowered, they basically prepare food, and that food is distributed through online modes, sir. Thank you, sir. इसलिए ये मानते हुए कि मैं गोरखपुर के एक गांव का व्यक्ति हूँ, yes, sir. मुझे ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के बीच के या ब्लॉक पंचायत के बीच के अंतर को समझा दीजिए और समझा दीजिए क्या है, क्या फंक्शन है इसका. सर, ग्राम सभा इज द बॉडी ऑफ पीपल जो कि विलेज लेवल पे होती है, एंड देन वी हैव सर अदर टर्म्स लाइक वी हैव जिला पंचायत, सर. तो जिला पंचायत सर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो पंचायत है जिसमें हमारे चेयरपर्सन होते हैं, बाकी इलेक्टेड बॉडी ऑफ मेंबर्स होती हैं. उसके अलावा सर वी हैव पंचायत के तीनों स्तर बता दीजिए और ग्राम सभा, ये सारी चीजें. सर ग्राम सभा सबसे लोवेस्ट लेवल पे है, जहाँ पे हमारे जो लोकल पीपल से मिलके बनता है, एंड उनको हेड करने के लिए वी हैव सरपंच. एंड उसके बाद सर मिडिल लेवल पे वी हैव पंचायत समिति. पंचायत समिति में भी इलेक्टेड नॉन इलेक्टेड मेंबर्स दोनों होते हैं, एंड देन वी हैव द जिला पंचायत, सर.
और ये पंचायत में जब ग्राम पंचायत की बात होती है जी सर। तो ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है यस सर। वो कैसे निर्वाचित किया जाता है? वो डायरेक्ट उसका सीधे तौर पर निर्वाचन होता है जनता के द्वारा या अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाता है? नो सर, जनता के द्वारा निर्वाचन किया जाता प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। यस सर। क्या ऐसा भी है कि कुछ राज्य ऐसे हो सकते हैं जहां अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता हो? सर इसके बारे में जानकारी आपको जानकारी नहीं है। यस सर। फंक्शन क्या क्या अलग अलग पंचायतों के होते हैं? ग्राम पंचायत का क्या कार्य है? आपके ब्लॉक पंचायत का क्या कार्य है? जिला पंचायत का क्या कार्य है? सर ग्राम पंचायत और लोकल लेवल पे जितनी भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होती हैं उसके लिए जैसे कि रोड्स का डेवलपमेंट करना, जो भी ग्रामीण क्षेत्र पे जो स्कीम्स काम कर रही हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। उसके अलावा सर अदर बॉडीज़ में लाइक सर ब्लॉक पंचायत पे, सो ब्लॉक पंचायत जैसे कि उसको बीडीओ हेड करता है, तो वहाँ पे जो भी डेवलपमेंटल या प्लानिंग एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट ने रखी हैं उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। सर आई थिंक दैट। अच्छा, जिला पंचायत का क्या कार्य है आपको नहीं पता है? नहीं सर, जिला पंचायत सर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट करता है। जिला पंचायत को के लिए भी सर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो स्कीम्स ऑपरेट हो रही हैं। अच्छा, एक जिले में जिला पंचायत और नगर पालिका दोनों हो सकती हैं? सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन सर? किसी जिले में यस सर। जिला पंचायत और नगर पालिकाएं दोनों हो सकती हैं? सर आई एम नॉट श्योर ऑफ इट सर। अच्छा, आपको जानकारी नहीं है इसके बारे में। अच्छा, बताइए कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी सर किस सदन के सदस्य हैं? सर विधानसभा विधानसभा के सदस्य हैं यस सर। कि विधान परिषद के सदस्य हैं? तो विधानसभा है सर। अच्छा, क्या उनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? सर गोरखपुर। गोरखपुर में कितनी विधानसभा है? सर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज सर 2 हैं सर। तो किस उससे हैं कॉन्स्टिट्यूंसी से? सर एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। गोरखपुर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राप्त नहीं हुआ जबकि कुशीनगर को एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राप्त हुआ, क्या कारण है? सर कुशीनगर काफ़ी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन रहा है सर, इसलिए इसको राष्ट्रीय स्तर पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इसको पोजीशन इसलिए दिया जा रहा है सर क्योंकि एक तो ये महापरिनिर्वाण स्थल रहा है गौतम बुद्ध जी का। उसके अलावा सर इसकी काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसलिए भी है क्योंकि ये पास है लुम्बिनी जो नेपाल। उसके अलावा सर सिद्धार्थ नगर एंड जो सारनाथ, तो ये काफ़ी हाई अमाउंट में सर टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगा एंड एज अ इस तरह से इस जगह की टूरिज्म पोटेंशियल इंप्रूव होगी, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी सर एंड वहाँ पे लोकल डेवलपमेंट भी हो पाएगा। इसलिए मैं ऐसा समझती हूँ कि इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्तर पे रखा गया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया, ठीक है। ये आप बताइए कि बुद्धिस्ट सर्किट, यस ठीक है ना, जो आप कुछ आप बता रहे हो Yes, उससे sir. एक अवधारणा निकल के आ रही है, बुद्धिस्ट Yes, सर्किट। बुद्धिस्ट सर्किट में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं So, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जी सर। कैसे हमें ये लाभ देने वाला है? सर बुद्धिस्ट सर्किट में उत्तर प्रदेश में जो डिस्ट्रिक्ट्स कवर हैं सर, जैसे कुशीनगर है, उसके अलावा सारनाथ है, सारनाथ के अलावा सर और डिस्ट्रिक्ट्स तो सर नहीं याद आ रहे, पर सर जैसे कि बुद्धिज़्म एक सब फेमस रिलीजन रहा है वर्ल्ड वाइड भी, स्पेशली साउथ ईस्ट वगैरह में, एंड अभी भी सर इंडिया में भी बहुत लोग बुद्धिज़्म प्रोफेस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो इसलिए सर आई बिलीव कि बुद्धिस्ट सर्किट पे काफ़ी ध्यान दे रही है हमारी सरकार और उसका डेवलपमेंट चल रहा है सर। ठीक है। Manjul, यस सर। you are a student of sociology. यस सर। I'm just giving the name of some communities of India, and you have to give one special characteristics and the reason where they reside. Okay? Nayar. सर नायर्स आर द नाम्बुद्री ब्राह्मण्स केरला के होते हैं सर। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर। वो कालिंगा। वो कालिंगा सर ये जो सेक्ट है ये कर्नाटक से बिलोंग करता है सर। और सर फेथ के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन लोकेशन सर कर्नाटक है। लिंगायत। लिंगायत सर, लिंगायत आर द वर्शिपर्स ऑफ शिवा, वो भी कर्नाटक से ही बिलोंग करते हैं। एंड सर वो कास्ट सिस्टम और जो ऑर्थोडॉक्स हमारी सोसाइटी में प्रेजेंट है उसके अगेंस्ट हैं, और वो लॉर्ड शिवा को अपना सुप्रीम अथॉरिटी मानते हैं सर। मजहबी सिख। सर इसके बारे में आइडिया नहीं है सर। रामदासिया सिख। सर नहीं पता। दाऊदी बोहरा। सर बोहराज एज लॉन्ग एज आई कैन जुडाइज्म फेथ से रिलेटेड है सर। क्या मैं आपके आइडियाज़ से, ये जो भी आइडियाज़ आपने दिया उससे एक ये परसेप्शन क्रिएट करूं कि आपकी रुचि जो है
वह माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी में कम है? नो सर, मेरी रुचि कम नहीं है, बस मुझे अवेयरनेस नहीं है बहुत सारे सेक्ट्स एंड कल्ट्स की सर। ऐसा नहीं कि मेरा माइनॉरिटीज़ के टुवर्ड्स रुचि कम है सर, बस थोड़ा अवेयरनेस नहीं है सर, याद नहीं है। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, यस सर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रे, ब्लू एंड ग्रीन हाइड्रोजन? Sir, first of all, sir, green hydrogen, sir, it is environmental friendly concept where we are producing, sir, hydrogen through the electrolysis of water via renewable energy sources. Sir, then, sir, other hydrogen, blue hydrogen. Sir, blue hydrogen, sir, where we are producing hydrogen with the accommodation of, sir, water and the oceanic ecosystem. And sir, grey? सर ग्रे का याद नहीं आ रहा है सर। कोई बात नहीं मंजुल, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है। थैंक यू सर। Sit down. What's your opinion regarding the today's interview? सर उतना अच्छा नहीं था एक्चुअली सर, फर्स्ट इंटरव्यू है मेरा, मैंने इससे पहले फेस नहीं किया है कभी पैनल। अच्छा, तो थोड़ा नर्वसनेस हो गई थी सर। नर्वसनेस हो गया। देखिए मंजुल जो है वह आप बहुत अच्छी कैंडिडेट हैं, द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है दैट इज़ वेरी वंडरफुल, बहुत अच्छा जो है वह है। और कई जगह आपने जो है वो बहुत अच्छे आइडियाज़ जो है वह दिए, पार्टिकुलरली जब जो है कम्युनिटीज़ के बारे में मैंने पूछा तो आपके पास पूरा आइडिया है सारे जो है कम्युनिटीज़ के बारे में, कहाँ है उनका फेथ क्या है, ये अच्छी बात है, दोज आर वेरी गुड ट्रेट। लेकिन डेफिनेटली रिफॉर्म्स तो एक प्रोसेस है। यस सर, यस, है ना, वो तो आप भी समझ सकती हैं। एक तो पहले तो बेसिक जो है वो जो एक होता है कि आने के पहले परमिशन लीजिए, ग्रीटिंग कीजिए, देन जो है वो बैठने के पहले थैंक्स जो है वो बोलिए, इसको आप वहाँ भूलिएगा नहीं। यस सर, ठीक है ना। यस सर सीटिंग पोस्चर आप थोड़ा सा और इम्प्रूव कीजिएगा तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, जैसे थोड़ा हाँ पीछे हाँ ये सर, और थोड़ा आई पैर थिंक थोड़ा आगे बेंड थे। नहीं, पैर थोड़ा सा और ये। अच्छा, अब ये ज़्यादा सहज है। ठीक अच्छा, है आपको भी अच्छा लग रहा है कि नहीं? हाँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना जी सर। हाँ, तो इससे क्या होगा कि आप में जो थोड़ी घबराहट है ना, जी, वो घबराहट कम हो जाएगी। सर रियलाइज हो रहा है वो हो रहा है ना। यस सर। हाँ, तो वहाँ पे भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा तो उससे आपकी घबराहट थोड़ी कम हो जाएगी। ओके सर। ठीक है, तो एक ये अटायर जो है वो आप क्या सर साड़ी पहनना है, लेकिन सर यहाँ अकेले रहते रूम पे तो टाई नहीं हो पा रही। कोई दिक्कत नहीं, तो मतलब केवल मैं तो केवल अटेंशन जो है वो मेरा काम है, अटेंशन कराना। तो हाँ वो इसके बाद जो है देखिए जो आपका कम्युनिकेशन का फ्लो जो है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो है एक्चुअल में वो कम्युनिकेशन का जो फ्लो आपका है वो प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा जो है वह वहाँ के हिसाब से ज़्यादा एकोमोडेट करेगा। ओके सर। यहाँ पर क्या है कि सीनियर्स जो है वह हैं बैठे हुए जी, और वो डिफरेंट जो है वह फील्ड के बैकग्राउंड से बैकग्राउंड से आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों की राय है कि थोड़ा आप अपना थोड़ा अपना स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन थोड़ा सा पॉज करके रखें जो है, तो वो ज़्यादा बेटर होगा उससे, क्योंकि वो थोड़ा निश्चित है बहुत सीनियर होते हैं। ओके सर, ओके सर। ठीक है, तो उन लोगों को थोड़ा सहजता होगी सुनने में। ठीक है, ये इसके बाद जो है वह जैसे क्वेश्चन अगर क्वेश्चन हिंदी में पूछा जा रहा है, ये सर आई फॉरगॉट, बाद में याद आया कि हिंदी में रिप्लाई करना है। हाँ, हिंदी में ही रिप्लाई करना चाहिए। जी सर। ठीक है, तो ये जो है क्योंकि वहाँ पर बेसिकली इंटरव्यू जो हो रहे हैं वो मोस्टली हिंदी में हो रहे हैं, बीच में कभी इंग्लिश पूछ लिया जा रहा है। हाँ सर, वो एक्चुअली सर मुझे भी रियलाइज हुआ, लेकिन मैंने क्योंकि स्टेटमेंट शुरू कर दिया था तो फिर उसको ब्रेक नहीं किया, बट इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे कि हमारे एक मेंबर ने पूछा कि मैं गाँव का व्यक्ति हूँ, इवन देन जो है आपने जो है वह उसको इलेक्टेड मेंबर और ये सब जो है वो वर्ड यूज किया। सर एक्चुअली वो सब वर्ड्स हिंदी में सर ये तो सोचना पड़ेगा ना, ये क्योंकि एक सिचुएशनल क्वेश्चन है। जी सर, ये सिचुएशन है तो यहाँ उस हिसाब से आंसर करना, उस हिसाब से ही आंसर करना होगा ना। ये चीज जो है उसके बाद जैसे फादर ऑफ जो है इंडियन सोशियोलॉजी थोड़ा देख लीजिए। ये सर कंफ्यूजन हो गई सर वहाँ पे। अब तो वहाँ पर कंफ्यूजन, तो आप माफी मांगती, लेकिन आपको फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोलने की जरूरत है ही नहीं। आप जो है वह अगस्त काम्ट वगैरह को जो है वह बताने लगी।
उसकी आवश्यकता नहीं थी ना। ठीक है सर। वो अंडर प्रेशर आंसर है, उसका जी, मतलब है कि yes sir, that- आपने पूछा है, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो मुझे मालूम है मैं बताना चाहती हूँ। Sir, yes ये sir, तो ठीक ये है अंडर प्रेशर होता है इसको, सर। ओके सर, ठीक है। ओके सर। और एक जो है वो जैसे कुशीनगर के बारे में पूछा गया, हम्म, तो उसमें फर्स्ट जो रिएक्शन था कि इट हैज़ वेरी स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस। हम्म, अच्छा ये बताइए कि स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस से ज़्यादा जो है वो बुद्धा सर्किट से एसोसिएटेड है, वो है, या स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस का जो है सो वो बुद्धा महत्व? सर्किट बुद्धा सर्किट। प्रायोरिटीज में तो आंसर प्रायोरिटी करना में है। लिस्ट में क्या होना ठीक चाहिए है, था? बुद्धा सर्किट। बुद्धा सर्किट, ओके सर। रादर देन की स्ट्रेटजिक लोकेशन। जी सर, ठीक जी है, सर, स्ट्रेटजिक लोकेशन के लिए तो हमारे पास बहुत सारे जो है वो जी एयरपोर्ट्स सर, जो है वो हैं जी सर, ऑलरेडी, जी सर। है ना। ओके और भी सर। नेपाल बॉर्डर पर जो है वो हमें स्ट्रेटजिक हम्म, लोकेशन के लिए जरूरत नहीं जी है, सर, जी सर, है ना। हाँ। तो वो थोड़ा सा इन सब चीज़ों की प्रायोरिटी को, कोई भी क्वेश्चन सर। ये नहीं आएंगे, हम्म, लेकिन जो है वो- प्रायोरिटाइज करके आंसर करना है। हाँ, उसको प्रायोरिटी जो है वो आपकी हो तो ओके बहुत सर। अच्छा जो है, यू आर डेफिनेटली अ वेरी गुड कैंडिडेट। सर एक्चुअली मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था सर, तो थोड़ी सी नर्वसनेस थी। बाकी सर और कोई नहीं, issue- हम लोग बाकी चीज़ों से जो है वह, सभी चीज़ों से जो है वह बिल्कुल खुश थे। और एक जैसे मैं म्यूज़िक में क्वेश्चन पूछ रहा था, तो जैसे ही पूछना चाहा तो आप उसको जस्टिफिकेशन जो है वह देने लगी, तो या तो फिर मेंशन मत कीजिए, ओके सर, वहाँ पे मेंशन ही कुकिंग नहीं मेंशन। कीजिए। ओके सर। हाँ, कि म्यूज़िक भी जो है वह, क्योंकि कुकिंग और म्यूज़िक अगर दो रहेगा तो वो बोर्ड दोनों जो में है से वह पूछ पहले जो है वो म्यूज़िक में पूछना ज़्यादा जो है वह इंटरेस्ट लेगा, ओके सर, रादर देन कुकिंग। ठीक है सर। आप भी समझ आए ना। Yes, क्योंकि sir. जो है वह महिला एक कुकिंग अगर हॉबी देती है, तो इसको बहुत जो है वह, जो भारतीय समाज है उस जी। भारतीय समाज के अनुसार से इसको बहुत अच्छी हॉबी जो है वह नहीं जो है वह ट्रीट यस सर, करेगा, यस सर, यस सर, ठीक है ना। ठीक है सर। क्योंकि यहाँ पे तो प्रेशराइज ही कर दिया गया है कुकिंग के लिए महिलाओं को, हाँ, यस सर। है ना। तो इसलिए वैसी स्थिति में वो फिर जो है वह म्यूजिक की ओर, तो इसीलिए मैं म्यूजिक की ओर गया, लेकिन ठीक है। आपने एकदम बिल्कुल उसको जस्टिफिकेशन देने लगे। हाँ सर, वो गलत था। हाँ, वो तो बाद में आप realize हुआ। दीजिए ही नहीं, ठीक है सर, ठीक है ना। ठीक है हाँ। सर। और एक और चीज़ पूछनी है, जैसे सर हम गोरखपुर से तो सर भी हम करके बात करते हैं, वहाँ पर मैं करके बोलना होता है सर, मतलब जस्ट फॉर ओपिनियन। अगर कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपसे हम भी निकलता है तो इसका कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं जाने वाला है, कोई इससे निगेटिव मार्क्स जो है नहीं होने वाली है। अच्छा सर, ठीक है, क्योंकि सर वो मेरी लोग मैं भी- करके आदत नहीं है सर हाँ, बात वो करने लोग की। भी जो है, जो भी वो मोस्टली जो है वो उस बैकग्राउंड से ही आते हैं, वो समझते हैं, अच्छा सर, ठीक है सर, ठीक है ना। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके, वेलकम।